Hey guys, in this video we will talk about United Nations Conference on Human Environment, that is UNCHE. So UNCHE basically was held in Stockholm in Sweden. Okay, so ये कब हुआ था? जून 5 से जून 16 1972 को. I repeat, UNCHE was held in Stockholm, Sweden from June 5 to June 16 1972. So you can say it was the very first conference that was held to discuss the climate issue, okay, or the issue of pollution and the environment. Okay, so this was the very first, this is the pioneer कॉन्फ्रेंस. ओके, सो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो 113 कंट्री से लोग आए हुए थे. तो हाउ मेनी कंट्रीज वर देयर इन्वॉल्व? 113 कंट्रीज वर प्रेजेंट, एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मैनी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली देयर वर गवर्नमेंटल बॉडीज वर देयर ऑल्सो एंड नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज वर ऑल्सो देयर, एंड इट वॉज बिटवीन गवर्नमेंट्स, तो इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो मैनी अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वर ऑल्सो देयर. तो अगर आपको ये बोल दे ऑप्शन में कि लाइक इट इज़ अ गवर्नमेंटल ट्रीटी, केवल गवर्नमेंट पार्टीज प्रेजेंट थी, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी like prelims में they ask. This was the first United Nations conference. I said this was very first pioneer conference. This was the first United Conference on the environment, as well as the first major international gathering focused on human activities in relationship to the environment. So as the name itself is saying, you see, United Nations Conference on Human Environment, that is Stockholm Conference. Okay, so human environment, ह्यूमन और environment के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज़ डिस्कस करने के लिए ये इंटरनेशनल गैदरिंग हुई थी. एंड दिस वाज ब्रॉडली फोकस्ड ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज इन रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट. ओके, एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एक्शन एट एन इंटरनेशनल लेवल. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या मिटिगेशन मेजर्स लेने चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू लाइक हैव एन एनवायरमेंटल एक्शन इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि सारा जो अर्थ है वो जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम डिजास्टर्स. लाइक ओके, लाइक डोंट यूज द वर्ड डिजास्टर, लाइक द वर्सनिंग कंडीशन ऑफ atmosphere or environment. The conference acknowledged that the goal of reducing human impact, again human impact, so you have to just Stockholm conference अगर आ गया तो वहाँ human impact की बात आएगी ही आएगी. Okay, so acknowledge the goal of reducing human impact on the environment would require extensive international cooperation. Okay, so to reduce the human impact on the environment, it is very necessary to gather all parties, and it is necessary that they should cooperate to each other. There should be international cooperation, as many of the problems affecting the environment are global in nature. क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है isolated नहीं है नेचर में. like deforestation is not limited or an isolated phenomena that is endogenic to a particular country. It is a global problem. To solve a global problem, it is necessary to find a global solution to that problem. Okay, so that is why it is necessary to gather all the countries together and to think about it what we should do. Okay, following this conference, the United Nations Environmental Program, that is UNEP, so you can say that UNEP was a follow up of UNCHE, that is UN Conference on Human Environment or Stockholm Conference. Okay, so UNEP was launched in order to encourage United Nations agencies to integrate environmental measures into their programs. तो इसी UNCHE के बाद ही there was a follow up of UNCHE, that was UNEP, that is United Nations Environmental Program. तो ये United Nations Environmental Program को लॉन्च क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि United Nations एजेंसीज को हैं, जितनी सारी एजेंसीज हैं लाइक वुमेन के ऊपर या फिर लाइक एनवायरनमेंट के ऊपर, या जो भी एजेंसीज हैं, सबको एक लाइक इंटीग्रेटेड वे में एनवायरमेंटल मेजर्स लेना है अपने प्रोग्राम्स में, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है. ये सब चीज़ें जो हैं
यूएन की सारी एजेंसीज को इंटीग्रेटेड वे में करनी है। तो यही डिसाइड हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। ओके, ठीक है। यूएनसीएचई एम्फसाइज दैट डिफेंडिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट मस्ट बिकम अ गोल टू बी परसूड बाय ऑल कंट्रीज। तो मस्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार हम ये वाली ट्रिक अपनाते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कि मस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि मस्ट extreme words है, but yes there is the must is true in this case. Okay, so UNCHE ने ये इस बात पे जोर दिया, emphasize किया कि it is very necessary to defend and improve the environment and it must become a goal to be pursued by all countries. So UNCHE said that defending and improving the environment must become your prior goal. Okay, and your prior goal, and it must be attained or it should be pursued by all countries. Stockholm Declaration and Action Plan defined, ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और एक्शन प्लान। देखिए ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और एक्शन प्लान कहाँ पे आया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। तो ये डिक्लेरेशन और एक्शन प्लान ने यही बोला कि आपको जो है हर कंट्रीज को इन्वायरमेंट की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए देयर शुड बी, इट मस्ट बी मेड अ गोल। ओके, सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड एक्शन प्लान, आई रिपीट SDAP, you can say that, Stockholm Declaration and Action Plan. Okay, SDAP defined principle for the preservation and enhancement of the natural environment. So Stockholm Declaration और Action Plan ने इस बात के लिए प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया कि कैसे आप प्रिजर्व करोगे और कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करोगे, एंड हाईलाइटेड द नीड टू सपोर्ट पीपल इन द प्रोसेस। और ये भी बोला कि पीपल का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, और इसीलिए पीपल को एनकरेज करना है, जो कम्युनिटीज हैं लोकल कम्युनिटीज। ओके, द कॉन्फ्रेंस इंडिकेटेड दैट इंडस्ट्रियलाइज्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज हैबिटेट डिग्रेडेशन, टॉक्सिसिटी, एसिड रेन वर नॉट necessarily relevant for all countries. In particular, development strategies were not meeting the needs of the poorest countries and communities. तो उन्होंने इस बात पे भी emphasize किया था। अब देखिए back in 1972 it was happening, तो उस टाइम पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी जितनी कि आज अभी है। तो 1972 में back then they said कि ये जो environmental issues हैं they are not endogenic to all the countries, like they are not common in all the countries, because जो developed countries हैं उन्होंने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम्स जैसी हैं वो अलग हैं। तो इसीलिए इन पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो पोरेस्ट कंट्रीज में और कम्युनिटीज में हम नहीं लगा सकते, उन्होंने ये बोला, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू to attain an stable environment. Okay, some of the specific issue addressed was the role which industrialized countries should have in the process of protecting the environment, stating that the industrial countries should help to close the gap between them and underdeveloped countries while keeping their own priorities and protection and improvement of the environment in mind. So ये चीज़ डिसाइड हुई कि environment protect करना है, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इन्वायरमेंटल गैप है उसको थोड़ा क्लोज करना है, लेकिन साथ साथ में अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका भी ख्याल रखना है, ठीक है, अपना प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट वो माइंड में बैक एंड में रहना चाहिए, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस डेवलप्ड अ लॉन्ग सेट ऑफ रिकमेंडेशन टू एक्ट एज गोल्स टू परस्यू इट्स मिशन। बहुत सारे रिकमेंडेशन बनाए, ठीक है। रिकमेंडेशन इंक्लूडेड दैट गवर्नमेंट शुड कम्युनिकेट अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज दैट हैव इंटरनेशनल implications such as air pollution, that government give attention to the training of those who plan, develop and manage settlement areas, ठीक है। गवर्नमेंट एक तो पहली बात वो आपस में कम्युनिकेट करें, दूसरी बात कि वो जो प्लानिंग, डेवलपमेंट और ये सेटलमेंट एरियाज का मैनेजमेंट होता है उसके लिए जो अपने इंडिविजुअल्स को ट्रेन करें, ठीक है, और चीज़ पे ध्यान दें, और एजेंसीज के साथ एक कोऑपरेटिव फैशन में वर्क करें बहुत सारे इश्यूज पे, जैसे कि एक्सेस टू क्लीन वाटर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो भी फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों पे मिल करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाए और ध्यान दिया जाए, इस पे वर्क किया जाए। However, it was pending environmental problems that dominated the meeting and led to wider public environmental awareness. तो जैसा कि आपको पता है यूएन का पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस जो इन्वायरमेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट
के बारे में बातें हुई, तो इससे जो है लोगों में भी एक अवेयरनेस आई, बिकॉज इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, सो पीपल गॉट टू नो येस देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वायरमेंटल इश्यूज. दिस वॉज बैक इन 1972, राइट. सो दिस वॉज वेरी अर्ली. ठीक है, तो ये चीज़ बस कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं. और आगे हम देखेंगे यूएनईपी की बात करेंगे, फिर यूएनईपी के बाद हम देखते हैं और क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस कोई आते हैं तो हम उसकी भी बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग.